that exposure. I've traveled to Canada, I've been to the campuses. I know the campuses, so I can guide you better that what kind of campuses these are, right? So let's start with Kingston campus. So Kingston has 3 institutions in the city. So that's why it is known as Student City. What are 3 institutions? First is Forshaw St. Lawrence College, second is Queen's University, and third is Royal Military College of Canada, right? So all these things seems very new to you, है ना? ऐसे ही लग रहा है ना कि सब कुछ बड़ा नया नया सा है ना? तो ये सबके साथ है, ऐसा आपके साथ नहीं है. They are with everyone. अगर आज I go and meet some Canadian and I talk about Karnal, Kurukshetra, Latva, for them all these things would be, all these places would be new because they are not staying over here. They are staying somewhere else. I think I'm okay without mic. Yeah, I'd like to say one thing. So, since Ma'am Vandana is the manager for the entire country, before we had decided that we would have the North India manager, and she's somebody who is the entire nation's manager. Not only nations, she talked about Pakistan and the neighboring countries as well. So, in fact, this is a golden opportunity, right, for you to ask as many questions. I remember meeting her in Chandigarh. It was a conference like a long time ago. Master Sir and I went, so I remember her from then. So I would say she is a powerhouse and warehouse of knowledge. Make sure that you don't let this opportunity go and ask as many questions as you can. How many getting? Yes. Right. Okay. Yes, he's absolutely right that way. Because I just shared with Vasu sir that I am not traveling much. I do not travel much. It's my team who travels. So you people are lucky that you got an opportunity that I've come all the way from Jalandhar to meet you all. I traveled in the morning and came down here just to meet you all, and that too for this session only. Okay, so I'll be going back after this session. So you people are lucky that means that I've traveled 8 hours to just meet you all, right? So make sure that you keep me busy for at least 3 hours. Let me relax and then go back. Okay, right? Okay. So now we start. So we were talking about Kingston. Kingston is a student city. Why? Because it has 3 campuses, 3 institutions. So first is St. Lawrence College, second is Queen's University, and third is Royal Military College of Canada. Okay. So this is one thing. Now, Kingston has maximum restaurants per capita. So a maximum restaurant से क्या समझते हैं? What do you understand by maximum restaurant? It means maximum job opportunities, right? Maximum job opportunities, right? The third thing which is there at Kingston is that it has 6,000 small and medium sized businesses. So it means again this is a golden opportunity for job, right? Now, our most of the programs, जितने भी programs हम St. Lawrence College में offer करते हैं, उनमें से maximum programs Kingston में offer करते हैं. अब Kingston की एक और specialty है. Kingston is first capital of Canada, right? अब currently capital of Canada क्या है? Ottawa. But Kingston is the first capital of Canada. Okay, so that's one thing. It means it's that good city because it's the first capital of Canada. Okay. Now, the second city is Brockville. So Brockville has 1,000 islands. 1,000 islands. I hope you all can understand कि अगर आप 1,000 islands की बात करें तो वो एक national treasure में आते हैं. और वो actually ऐसे हैं. जब when I traveled to Canada, तो I first traveled to South India. तो वहाँ पे कोची में I wanted to try that वो backwaters होते हैं. उनके ऊपर ना there's a boat which goes on the backwater. So I wanted to try that. तो जब हम when we went out for the boating, मैंने देखा वो boat जो थी ना वो ऐसे shake कर रही थी. तो I said नहीं मैं नहीं बैठूँगी because I am not that physically fit कि मैं इतना risk ले सकूँ. So I said I'll not sit. So then my director from Canada, he told me that when you come to Canada na, so I'll take you for a cruise for 1,000 islands. And he actually took me. And it was such a wonderful cruise. कोई कुछ शेक नहीं कर रहा. आप ऐसे ही यहाँ खड़े हैं, इतना सा स्टेप लेके आप क्रूज में जाके बैठ जाते हैं और आपको आराम से वो 1 hour के अंदर पूरे 1,000 आइलैंड्स से लगता है. और सबसे अच्छी बात क्या है कि उन आइलैंड्स के ऊपर लोगों ने घर बना रखे हैं और उन घरों के बाहर उनकी बोट्स खड़ी हुई हैं. वो अपनी बोट से ट्रैवल करते हैं, सी शोर पे आते हैं, अपना सिटी में जाते हैं, काम करते हैं, वापस चले जाते हैं. ठीक है. सो दैट्स हाउ पीपल लिव ओवर देयर. वहाँ पे बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है. इंडिया की तरह वहाँ पे सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है.
आपने कई बार सुना भी होगा, जब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको आते हैं बात करते हैं तो जैसे यू विल बी गोइंग फॉर हाइकिंग, यू विल बी गोइंग फॉर स्कूबा डाइविंग, यू विल बी गोइंग फॉर दीज ऑल एक्टिविटीज, बिकॉज ये सब उनके लिए बहुत कॉमन है। बोटिंग, साइकिलिंग, ये सब कॉमन एक्टिविटीज हैं जो कि हमारे यहाँ पे कंसिडर ही नहीं हो गई। अब थोड़ी सी साइकिलिंग का ट्रेंड आ गया, लेकिन अभी तक तो हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसी सच आउटडोर एक्टिविटीज कंसिडरेशन में नहीं आती, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इज डॉक्टर फेमस फॉर। देन इट्स फेमस फॉर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं दोज आर रिलेटेड टू आर्ट एंड क्राफ्ट्स। देन द थर्ड कैंपस इज कॉर्नवॉल। अगर आप पता करें, आज भी गूगल पे जाके लिखेंगे द सिटी विद द लोएस्ट रेंट इन कनाडा, तो आपके पास आएगा कॉर्नवॉल। कॉर्नवॉल इज द सिटी विद द लोएस्ट रेंट इन कनाडा। अगर रेंट कम है तो आपको कैसे फायदा होगा? बताओ, फायदा होगा या नहीं होगा? होगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को अब एक इन्फॉर्मेशन और से स्टार्ट करती हूँ। चाहे तो आप अपनी कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज ये आपका जिस्ट होगा अगर आप कनाडा में जाना चाहते हो तो कैसे जाना चाहिए। 4 फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपको कनाडा में कहाँ जाना चाहिए। कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स, राइट। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर है प्रोग्राम। कौन सा फैक्टर है? प्रोग्राम। सेकंड फैक्टर क्या आता है? अफोर्डेबिलिटी। क्या आता है? थर्ड फैक्टर आता है ईया, और फोर्थ फैक्टर आता है करियर ऑप्शंस। इसमें लोकेशन कहीं नहीं आता। बच्चे कहाँ से स्टार्ट करते हैं? डज लोकेशन मैटर? किससे बोला ये? ओके, अब मैं इसको क्लियर करती हूँ। यस, तो बोल दिया आपने वापस। अब एक बात बताओ, आप इंडिया में जॉब लेने गए, राइट। आपने डिग्री करी है दिल्ली से, आपके साथ वाले फ्रेंड ने डिग्री करी है करनाल से। आप जॉब लेने जाओगे, आपकी डिग्री का वैल्यू होगी? किसी ने दिल्ली से करी है, किसी ने करनाल से करी है, खत्म हो गई होगी। सेम इज इन कैनाडा। आप कहीं पे भी जॉब लेने जाओगे, दे आर नॉट गोइंग टू सी वेदर यू हैव डन इट फ्रॉम Toronto, whether you have done from Ottawa, whether you have done from Montreal. They'll see what you know, what are your skills, what is your expertise, whether you can communicate well or not. Yes या no? Yes. So, location matter करती है? No. सिर्फ लोकेशन कहाँ मैटर करती है? एक्सपोजर में कई बार मैटर करती है। जैसे अगर आप दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली के बच्चों को फॉर श्योर आपसे ज़्यादा एक्सपोजर होगा। You might not have that same exposure here in करनाल। एक्सपोजर में मैटर करती है लेकिन स्किल्स में मैटर नहीं करती, राइट। सो ओके, सो नाउ वी कम बैक टू अफोर्डेबिलिटी। हम कॉर्नवॉल की बात कर रहे थे, लोएस्ट रेंट इन कनाडा। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप टोरंटो में, लाइक यू आर इन टोरंटो, व्हाट वुड बी योर नॉर्मल लिविंग एक्सपेंस? लिविंग कॉस्ट क्या होगी? कितने डॉलर्स पर मंथ? 700? Yes, 1200 to 1500, right? Absolutely right. अब मान लो हम मिनिमम वाली लेते हैं 1200, है ना, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बच्चे मिनिमम में एडजस्ट कर लेते हैं, है ना, जीरो है। अब आप अगर कॉर्नवॉल में रह रहे हो, ब्रॉकविल में रह रहे हो या किंगस्टन में रह रहे हो, आपका लोएस्ट रेंट है तो आपका अप्रॉक्सीमेट जो लिविंग कॉस्ट आती है दैट इज अराउंड $800। क्या आती है? $800। कितने डॉलर्स का डिफरेंस हो गया? आपको भी कोई मैटर ही नहीं करता, महीने का 20-22 हज़ार रुपया तो है ना। 24 से मल्टीप्लाई करें, 2 साल है ना आपने वहाँ पे। जब 2 ईयर से मल्टीप्लाई करोगे तो इट कम्स आउट टू बी $9,600, अप्रॉक्सीमेटली $10,000। तो इंडियन करेंसी में कितना बन गया? 6 लाख के आसपास बन गया। अब क्लियर? कितना फर्क पड़ता है? यस या नो? सो दैट्स अफोर्डेबिलिटी, राइट। जो आपने कैलकुलेट करनी होती है, जो आपको एज अ स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जो बच्चे कैलकुलेट करते ही नहीं है कि अगर हम पढ़ने जा रहे हैं, हमें आप मुझे ये बताओ, अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया में आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा से पढ़ रहे हो, नो ना? सो कनाडा जाके क्यों पढ़ना चाहते हैं? टोरंटो, वैंकूवर, ऑटावा, मॉन्ट्रियल? मैं बताऊँ क्यों? Do you want me to answer that?
मेरी अकेली की आवाज आप सब लोगों से ज्यादा है. Do you want me to answer that? Yes. Good. So I'll answer you that. आप मुझे एक बात बताओ, जब बच्चा एक पहला बच्चा इंडिया से टोरंटो गया, उसकी क्या फीलिंग होगी? सबसे पहली फीलिंग जब वहाँ पे जाते हैं उसने क्या कहा? वाओ, ये अच्छी सिटी है. नेचुरली उस इंडिया में ऐसी कोई सिटी नहीं मिली. कनाडा इज अ डेवलप्ड कंट्री. जब वो बच्चा वहाँ पहुंचा तो उसे यही लगेगा ना दैट इट्स अ वाओ सिटी, राइट? उस एक बच्चे ने 10 और को बताया क्या? इट्स ए वाओ सिटी. 10 ने कितनों को बताया? 100 को 100 ने, 1000 को 1000 से 10,000. अब अगर आज आप टोरंटो के किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हो, वहाँ पे 80% इंटरनेशनल स्टूडेंट है और 20% डोमेस्टिक स्टूडेंट है. अगर आप किंगस्टन, ब्रॉकविल, कॉर्नवॉल में जाते हो, 80% डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं और 20% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. फर्क समझ में आया? वहाँ पे आप 80% डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के साथ पढ़ रहे हो, आप काइंड ऑफ इंडिया में ही पढ़ रहे हो, ठीक है? अगर आप टोरंटो के किसी बहुत बड़े, और वैसे भी अगर आप वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जिनका आपने नाम भी सुना हो, तो वो सब इंस्टीट्यूशंस आज की डेट में खालसा कॉलेजेस ऑफ इंडिया कहलाते हैं, ठीक है? और ये मैंने बोली ये फैक्ट है. वास्तु सर इससे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? यस, इट्स अ फैक्ट है या नहीं? मैंने सच में एक माइंड देखा है जिसमें ब्रैम्पटन में बस ड्राइवर बस चला रहा है ना, और वो बस और एक कंडक्टर है और उसमें 80% सरदार बैठे हैं और वो उनको पूछ रहा है कि तुसी कितने जाना है. ठीक है, वो सच में ऐसा मीम बना हुआ है और मैंने देखा है. मैंने कहा अरे ये क्या है? तो ऐसा है वहाँ पे. दिस इज ए फैक्ट. आप लोग जाओगे, आप चाहे जाके देख भी लेना. मैंने जाके देख लिया. मतलब मैं तो आई वेंट टू सरी, मैं वैंकूवर सरी में रही. I have my cousin brother over there. I stayed with them for around 12-13 days. दूसरे तीसरे दिन मैंने कहा भैया आपके पास जितने फोन आते हैं पंजाबी में बात करते हो या इंग्लिश में नहीं कोई बात करता? कहते ये है ही नहीं इंग्लिश में कोई. सरी तो कहते वैसे ही कहते हैं मिनी पंजाब है. वहाँ पे कोई टिम हॉर्टन्स ले लो, मैकडोनल्ड्स ले लो, KFC ले लो और ये बर्गर किंग ले लो, कोई भी रिटेल चेन ले लो, सबके ऑनर सरदार हैं और वो सब पंजाबी बोलते हैं, ठीक है? सो दैट्स अ फैक्ट. That's a fact which is there, right? तो जब आप इंटीरियर्स में जाते हो ना, जितना आप कनाडा की इंटीरियर्स सिटीज में जाओगे ना, उतना ही ज़्यादा आप कैनेडियन एक्सपीरियंस लोगे क्योंकि वहाँ पे कनाडा के नेटिव रेजिडेंट्स हैं. गॉट माय पॉइंट? ठीक है, ओके. अफोर्डेबिलिटी इसमें होगी. अब कॉर्नवॉल के अंदर क्या है? कॉर्नवॉल इज अ सिटी जिसके अंदर आपके पास एक परमानेंट रीजनल इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है. आपको रीजनल इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के बारे में पता है? सो मैं आपको समझाती हूँ. आप मुझे ये बताओ कि एक पर्सन को पूरे हरियाणा की परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है, ठीक है? अब एक पर्सन, वही सेम पर्सन एक सिर्फ पिहोवा की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है. तो उसे जल्दी PR किसकी मिलेगी, पिहोवा की या पूरे हरियाणा में से मिलेगी? दैट इज रीजनल इमिग्रेशन कि कनाडा के अंदर कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनको डेवलप करने के लिए वहाँ पे रीजनल इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम चला दिया गया. अब कॉर्नवॉल में क्यों है कि कॉर्नवॉल वेयर हाउसेस का हब है, ठीक है? जितने भी कनाडा की रिटेल चेन्स हैं उन सब का जो वेयर हाउसेस है ना, जैसे हमारे यहाँ पे हमारी रिटेल चेन्स कौन सी, जो रिलायंस वाली रिटेल चेन्स आती हैं या आजकल बिग बाजार खुले हुए हैं, ठीक है? तो ये सारे रिटेल चेन्स अभी इंडिया में तो आनी शुरू हुई हैं, बट कनाडा में ये सारी बहुत प्रेवलेंट है, ठीक है? जैसे मैक्रो करके भी आई है ना. तो वो जो रिटेल चेन्स है ना, उनके अपने वेयर हाउसेस क्या है, वो सब कॉर्नवॉल में. अब कॉर्नवॉल में वेयर हाउसेस की होने की वजह से वहाँ पे मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, ठीक है? सो इस वजह से वहाँ पे रीजनल इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है. तो जो बच्चे अगर ओंटारियो के अंदर OINP के अंदर अप्लाई करते हैं तो उनको 5 to 6 ईयर्स लगते हैं PR के लिए. वही बच्चे अगर कॉर्नवॉल में अप्लाई करेंगे तो उनको 1 to 2 ईयर्स लगेंगे. रीजनल इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के अंदर ये फायदा है आपको कॉर्नवॉल में अप्लाई करने का, राइट? सो मैंने आपको अफोर्डेबिलिटी भी समझा दी. अफोर्डेबिलिटी मैंने आपको लिविंग कॉस्ट में समझाई है. एक बार ट्यूशन कॉस्ट में भी समझा देती हूँ क्योंकि अब मैं ट्यूशन कॉस्ट पे आ रही हूँ, राइट? सो ट्यूशन कॉस्ट, अगर आप टोरंटो में किसी एक इंस्टीट्यूशन में जाते हो, आपकी रफली क्या ट्यूशन फीस हो साल में? 10 to 12 तो किसी की नहीं है, सेमेस्टर की.